نارمل جیسا ہم بغیر جوتے کے گھومتے ہیں اس طرح وہ جوتے پہن کر ان کا گھومنے کا رواج ہے. ہاں سر، مطلب وہاں ایک کلچر ہی ایسا بنا ہوا ہے اچھا کہ وہ جوتے اس طرح. پھر بعضوں کا سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جوتے اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض جگہ حضور ایسی برف کی طرف سے ہوتا ہے، مطلب برف باری کا، کہ وہاں ٹائر کے ویل جو ہے نا وہ چینج کرنے پڑتے ہیں. یعنی بعض ٹائر کے ویل وہ ہیں کہ جو برف باری میں قانونی طور پر بدلنے ضروری ہیں، کیونکہ وہ ویل جو ہیں وہ زمین پر سلپ نہیں ہوتے ورنہ سلپ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ممالک میں جوتے بھی لوگ اسی طرح کی اپنی تقسیم رکھتے ہیں. تو پھر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ نماز جنازہ میں آئیں تو شاید ہر ایک جوتا نہ اتارے. تو پھر یہ صورت جو آپ نے شاید فرمائی ہے وہ ان کو کافی فائدہ دے گی کہ پھر وہ پاکی ناپاکی کے تعلق سے دیکھا تلا ناپاک ہے تو جوتے پہن کر بات وہی ہوگی نا کہ جب تک کنفرم نہیں ہے اس وقت تک ہم اس کو ناپاک کہہ نہیں سکتے. ناپاک ہونا معلوم ہو تو پھر اس کے بعد ناپاک وہی کہ جوتے کا تلا ناپاک ہوا، یعنی ناپاک ہوا جب جی تو نماز نہیں پڑھ سکتا نا جناب. جی پھر تو جوتے اتار کے اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا نا. کھڑا ہو سکتا ہے. جوتے اتار اس پہ کھڑا ہو جائے گا ورنہ تو نہیں ہو نماز جی. ہو، کیونکہ جوتے کا تلا ناپاک ہے. اگر یہ کنفرم اتنی نجاست لگی ہے کہ جو نماز کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے. یہ جو بھی اوورسیز کے جو ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، اگر یہ اس طرح کا یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ آپ کو مدنی پھول مل جائیں یہ ویڈیو کلپ، تو یہ اتنا ویڈیو کلپ جو ہے نا یہ اگر نماز جنازہ میں بیان ہو جائے نا باہر تو کافی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو علم و مسئلے کی بات پتہ چلتی ہے وہ اچھا لگتا ہے اور حوالے کے ساتھ بات ہے ماشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. یہ جب غسل کرتے ہوں اتارتے تو ہوں گے نا. نہیں یہ تو ڈیفینیٹلی بس مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تب بھی اتارتے ہیں، اتارتے ہیں بس، ڈیفینیٹ. جنازے میں بھی اتار سکتے ہیں. اسامہ شبیر ہیں، کیا صرف توبہ کر لینے سے قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ جی نہیں، قضا اگر جان بوجھ کر ہوئی ہے کی ہے تو توبہ بھی کرے اور اس کو ادا بھی کرے. یہ اگر اسلامی بہن اتنی عمر کرتی ہے کہ اگر مزید عمر اگر کرتی ہے تو بال کٹوائے گی تو کندھوں سے اوپر ہو جائیں گے، اب اس صورت میں کیا کریں؟ جزاک اللہ خیر اگر ہمیں فرما دے تو. اس میں کتابوں کے اندر تو کوئی صراحت کے ساتھ جزیہ نہیں ملا. علماء اہل سنت کا، مفتیان اہل سنت کا آپس میں اس میں مختلف آراء ہیں. بعض کے نزدیک منع ہے کہ وہ نہیں کرے گی، بعض احتیاطاً کہتے ہیں کہ نہ کرے، بعض نے اجازت دی ہے. تو اب عافیت اسی کے اندر ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ طواف ہی زیادہ کرے، نفل طواف. نفلی طواف. ہمارے پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں بہنوں میں یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 قرآن پاک ضرور ختم کریں. جلدی جلدی میں کئی صفحات آگے بڑھ جاتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے ہیں. یہی نہیں، اسکول میں، محلے میں جب پارے بانٹے جاتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سب کی رہنمائی کیجیے. عبادت میں کمپٹیشن کرنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی ریا وغیرہ اور ربے جا کے مسائل نہ ہو، گناہ بری صورتیں نہ ہو. صرف اتنا کہ میں اتنے درشی پڑھوں گا، وہ نہیں میں اتنے پڑھوں گا، اتنے پارے پڑھوں گا، میں اتنے ختم کروں گا. یہ مسابقت کہلاتی ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے، کوئی اور برائی شامل نہ ہو. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جیتنے کے لیے یہ 4-5 پیج آگے بڑھ جائیں اور میں نے کہا اور کوئی صورت اب دھوکہ دے تو وہ تو دھوکہ ہی ہے نا. پھر کمپٹیشن کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات خاص کر چھوٹے بچوں کو ٹکرا دو نا ہاں تو یہ تو وہ اس معنی کچھ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج مغرب ہوتے ہی غروب اقدس رمضان شروع ہو جائے گی اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو 16 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. 70واں سال شروع ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے، اور اللہ پاک نظر بد سے بچائے ہمارے مدنی چینل کو. تو اس کے لیے میری آپ سب سے، ناظرین سے سب سے درخواست ہے. امیر سنت نے اس دن ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے 2 رکعت کم از کم شکرانے کے نفل پڑھنے کی سب سے درخواست ہے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تراویح اور وتر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 2 رکعت نفل یہاں باجماعت ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ. اب تمام اس پہ بھی شرکت کیجیے گا. اسلامی بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں، اسلامی بھائی بھی اہتمام کریں، اور دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ پاک مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے
शुरू कर इसके लिए कुछ आप भी मदनी चैनल के इस मौके पर कोई ऐसी फीस ले लें, मदनी फीस कि 16 साल पूरे होने पर देखने वाले क्या मदनी फीस थे शुक्राने में ऑन कराएं, 10 घरों में, 12 घरों में, 10 रमज़ान है तो इसके हिसाब से कम से कम 10 घरों में शुरू करवा दें, 2 घरों में शुरू करवा दें, कोई हदफ तय कर लें कि महीने में इतने घरों में मैं मदनी चैनल शुरू करवाऊंगा। 16 का सोच रहा था मैं तो, 16 का नहीं, 16वीं साल ही रहे ना। इस मुनासिबत से अगर हर एक ये इतना मुश्किल नहीं है किसी को ये दावत देना कि मदनी चैनल अपने घर में जारी करे, देर तो नहीं लगती इसमें कहने में। अब वो इनकार भी आमतौर पे आदमी करेगा नहीं, क्यों नहीं, वो हाँ ही बोलेगा, सारे वो हाँ बोलेगा, अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। हाँ ये है कि अगर आप इसको फॉलो अप भी करें तो इस तरह के तो मतलब 16 के लिए बड़ा हौसला चाहिए, आप हौसला करें। ये किसी तरह भी इनके घर में मदनी चैनल दाखिल हो जाए। मैंने एक तादाद है कि जिनके घरों में मदनी चैनल अब भी नहीं है, तो आपको कोशिश करनी होगी। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि मजहबी लोगों से ही बस उनको क्या बेर होता है तो नहीं अपने घरों में दाखिल नहीं होने देते। तो एक आध का रुझान है भी तो वो या तो बेचारा बेबस होता है, चलती नहीं है। तो इस तरह के माहौल में समझाना पड़ेगा, मोहब्बत देकर प्यार से। अगर मदनी चैनल के ज़रिए आपने इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग घरों में दाखिल कर दिए तो इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा नमाजी हो जाएगा, बड़ा मतलब घरों में मजहबी माहौल बनेगा, दीन पर अमल करने का माहौल बनेगा, गुनाहों से बचने का माहौल बनेगा, नमाजों रोज़ों का माहौल बनेगा मदनी चैनल के ज़रिए। इसलिए ज़रूर कोशिश कीजिए। तो क्या 16 का जहन बनता है 16वीं, तो इस तरह 16वीं सालगिरह भी आपको याद रहेगी या कुछ कमी बेशी करनी है? महाना बोला ही नहीं मैंने, आइंदा साल तक 16 तो महीने के एक हो सब कुछ ही हुआ बस। तो ये तो हाथ उठा लो भैया, आप तो अल्लाह तौफीक दे, हाथ तो नीयत हो 100% नीयत हो तो, वरना नहीं। 12 महीने में 16 मदनी चैनल ऑन कराने फॉलो अप के साथ। वो मदनी चैनल अच्छा बहुत लगता है, तारीफें करेंगे, लेकिन दूसरे के घर में दाखिल हो इसके लिए कोशिश नहीं करनी है ना। हम ही इसका फेस लूटते रहे, दूसरा कोई न लूटे। किसकी नीयत बनती है, अगर बनती है तो माशाअल्लाह नाजरीन भी नीयत करें। और उसमें मैं इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों से एक और दरख्वास्त करूँगा, माशाअल्लाह अभी तो मदनी मुज़ाकरे जारी हैं, लेकिन पूरा साल हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला रहता है हफ्तावार। तो अगर हो सके तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपके जो भी मोबाइल में जो आपके व्हाट्सएप पर जो ग्रुप जो नाम है, अगर आप उन्हें हर हफ्ते और जो भी जब मदनी मुज़ाकरा हो, अब एक मदनी मुज़ाकरे को हम सबका मैं नहीं कह रहा, सिर्फ एक मदनी मुज़ाकरे को हम लेते हैं, सिर्फ एक मैसेज कर दिया करें। जैसे अमीर सुन्नत के आने का वक्त हो गया कि मदनी चैनल पे बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा है, सवाल जवाब अमीर सुन्नत देंगे, आप मदनी चैनल पर आ जाएं। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला आपकी एक इन्विटेशन ऐसी होगी कि वो आएंगे और फिर एक बार मदनी मुज़ाकरे में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मदनी मुज़ाकरों की दावत देने पर भी नियत कर लीजिए, नाज़रीन भी कर लें, इस्लामी बहनें भी कर लें, आदमी मदनी से मुशावरत भी इस पर अगर गौर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। ईदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में गुजारिश है कि गालिबन 6 रमज़ान को इफ्तारी के बाद नमाज मगरिब के बाद सिलसिला वे ऑफ में निगरान शुरा इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला के हवाले से फरमा रहे थे कि अपनी प्लानिंग्स को छुपाना चाहिए, किसी सामने वाले बंदे के आगे उसको मेंशन नहीं करना चाहिए, जाहिर नहीं करना चाहिए। इसमें आप ये रहनुमाई फरमा दें कि जब लोग आपस में मिलते हैं, मुताल्लिकीन जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद वो उनका सवाल ही ये होता है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल आप क्या कर रहे हैं। इस मौका पर अपनी प्लानिंग्स को, अपने इरादों को कैसे छुपाया जाए, कैसे मख्फी रखा जाए, क्योंकि फिर वो झूठ भी नहीं बोला जाता। अपने आइंदा करने वाले कामों को कैसे छुपाया जाए, बराए मदीना आप रहनुमाई फरमा दीजिए। इसमें जाहिर है कि वो हर प्लानिंग तो ऐसी नहीं होती ना कि जिसको छुपाना जरूरी हो, उसकी सूरत ही बनेगी। वैसे
इन्होंने जो भी कहा होगा तो शायद इस हदीस पाक के तहत कहा हो कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गिरामी अपने मकासद में कामयाबी हासिल करने के लिए इन्हें राज में रखने से मदद हासिल करो, क्योंकि दुनिया में हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अभी हदीस पाक की शरह तो अटकल से हो नहीं सकती ना, अपनी सोच के मुताबिक। वैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सफ़र जो था वो सीगे राज में रखते थे कि कब सफ़र कर रहे हैं। ये रिवायतें हैं इस तरह की। ये शायद ये हिकमत हो के दुश्मन हमला ना कर दे वगैरह। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान ने हसद से बचने वाले उन्वान में इस हदीस को नकल किया है और फिर यही फरमाया कि इस तरह अपने आप को हसद से बचाए। तो इसे हसद से बचता है, बंदा नज़र बद से बचता है, तो इन चीज़ों से बच जाता है वो, अगर ये इस पर अमल करता है तो। अब ऐसे भी अगर कोई अपनी आमदनियाँ बताए, दुकान में इतनी सेल होती है और इतना % उस आइटम में मिलता है, इतना % नफ़ा उस आइटम में मिलता है, तो ये सब बातें ज़रा बताने की नहीं होती। तो ये बहुत सारी बातें तजर्बे से भी साबित हैं कि आप किसी काम की करने का पहले से इजहार कर देते हैं ना, तो बाज़ औक़ात वो काम होता ही नहीं है। और किसी काम को आप बिल्कुल सीधा राज में रख के करते हैं और जब फिर लोग कहते हैं यार बताया भी नहीं था, काम हो गया। तो ये आम लोगों को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि अगर हम नहीं बताते तो बाद वक़्त वो काम हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है जब हम ऐलान करते हैं ना, तो फिर लोग पूछते हैं यार क्या हुआ, उसका कहा था अभी तक हुआ क्यों नहीं है। तो अपने को भी शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार क्या करें। तो काम रुकने की भी कुछ इस तरह की वजूहात आ जाती हैं। ये सारी तकरीबन चीज़ें मज़ामीन मौजूद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा आपसे सवाल ये है कि सुबह जब मैं उठा सैरी करने के लिए, मैंने टाइम देखा, टाइम 4:30 बज रहे थे। टाइम घड़ी चल रही थी, गलत होने की वजह से मैंने सैरी करना शुरू कर दी। जब मैंने सैरी कर ली, टीवी ऑन की तो टाइम देखा, उस टाइम ख़त्म हो चुका था। मैंने रोज़े की नियत कर ली थी, क्या मेरा रोज़ा हो जाएगा या नहीं, या फिर मुझे रोज़ा कज़ा अदा करना पड़ेगा? बराए करम जवाब दे दीजिए। अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने की समझना पड़ी और यूँ समझा कि वक्त है और खाता रहा, और फिर पता चला कि तो मैंने सहरी का वक्त ख़त्म हो गया था फिर भी खाया है, तो ये रोज़ा तो इसका ना हुआ। अब ऐसी सूरत में इसको एक रोज़ा कज़ा करना होगा और वो दिन सारा रोज़ेदार की तरह गुजारना होगा। ये वाजिब है कि अगर रोज़ा टूट गया किसी का या किसी वजह से ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो सारा दिन रोज़ादार की तरह रहे, है ना, ये वाजिब है। कज़ा भी एक रोज़े की कज़ा करनी होगी। देखो ऐसे मौके पर नफ्स व शैतान वसवसा डालते हैं कि मेरा क्या कसूर है, मैं तो तवज्जो नहीं थी, मैं भूल गया वगैरह वगैरह। तो ये नहीं होता। जो उलमा ने मसाइल बयान किए हैं, ये बाहर शरीफ में इस तरह के मसाइल मिल जाएंगे जो मैंने अर्ज़ किया ना आपको। तो ये वो हमसे ज़्यादा समझते थे कि मजबूरी किसको बोलते और किसको नहीं बोलते, इसलिए वो एक रोज़ा कज़ा कर लेना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत साहब से ये सवाल है कि अगर कोई रोज़ादार वज़ू करते वक्त मुंह में जो कुल्ली करते हैं हम, तो उसे वो डर हो कि ये पानी ये ना हो कि मेरे हलक से नीचे उतर जाए, तो अगर वो वज़ू में कुल्ली ना करे तो कैसा है, क्या वज़ू कंप्लीट हो जाएगा या नहीं? वज़ू में कुल्ली करना सुन्नत मुअक्कदा है। कुल्ली भी है कि हलक की जड़ से लेकर पूरे मुंह में हर कल पुर्जे में पानी बह जाए, दांतों की खिड़कियों में, करवटों पर, दांतों के आगे का मसूड़ा, इसमें भी, इसके पीछे भी, अंदर में भी, तालू में भी, हर जगह पानी फिर जाए, ये ज़रूरी है। तो ये वहमात है, उतर जाएगा तो फिर सोए भी नहीं, कि बाद लोगों की आदत ही मुँह खुला रख कर सोने की होती है। ये कि फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। गुस्ल करेंगे तो उसमें तो फिर कुल्ली फ़र्ज है इस तरह की जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, तो उसका क्या करेंगे? तो ऐसे वहम ना करें, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखकर कुल्ली करें, ज़रूर करें। पानी क्यों उतरे, कोशिश करें कि ना उतरे। दुनिया करी नहीं ना कुल्लियाँ। नाक में पानी चढ़ाने के भी मसले होंगे, नाक में पानी नहीं चढ़ाओ। अच्छा, फिर ये कि नाक में पानी चढ़ाना भी हो नर्म हड्डी तक, सुन्नत मुअक्कदा वज़ू में और गुस्ल में फ़र्ज।
अब इन दोनों को बचा लो, तो फिर यह कि बाजू का ऐसा होता है कि मुंह धोते धोते भी मुंह में पानी चला जाता है और एकदम में सब झटका लगा के उतर गया, अब क्या करोगे, मुंह भी नहीं धोएंगे, फिर आहिस्ता सवेरे पूरा वुजू चला जाएगा। तो जो भी वुजू की सुन्नतें, फर्ज, मुस्तहब्बात सब अदा करनी है, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारे रोजे में और जान पड़ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि जनाजे को देखकर बैठे हों तो खड़े हो जाने के बारे में क्या हुक्म है। इसी तरह जब जनाजा गुजर रहा हो तो अगर हम भी गुजर रहे हो तो हमें रुक जाना चाहिए या हमें अपना गुजर जाना चाहिए। इसी जगह बैठे हों और वहां से जनाजा गुजरे तो खड़ा होना जरूरी नहीं, और खड़े होने के मुतालिक रिवायत में जो हुक्म आया वो मनसूख है, यानी कि कैंसल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े होते थे, लेकिन बाद में उसे तर्क फरमा दिया, ने छोड़ दिया खड़ा होना। हाँ, जो शख्स साथ जाना चाहता है वो उठे, वो जनाजे के साथ शामिल हो जाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी